traditionally it is one-on-one sales and customer contact. But we realize that the world is changing, and you need to be present online because especially a lot of new buyers and first-time buyers, they are going on the net and searching for prospective suppliers. See, one thing which we realized, and it was more or less unanimous, that IndiaMart is one of the most popular portals with respect to B2B or maybe other formats. After going through the website and after meeting the people from the company, we realized that this should be the right platform for us to be present on. See, we are very happy as of now, and we are getting a good number of inquiries on a daily basis. The good part is that those inquiries are coming from new customers we might not have been able to tap. So that is very encouraging. I'm very sure that because of IndiaMart, we've been able to increase our presence online as well, apart from reach and penetration. So I think IndiaMart team, especially the support staff, is quite responsive, and they are generally able to cater to all our requirements and some issues if we face on an urgent basis. So we are reasonably happy with the back-end performance. See, we are definitely with IndiaMart, and I'm sure that over the years and with time, we are going to be upgrading ourselves to whatever best possible level in IndiaMart. Yeah, as of now, as things stand, we are reasonably satisfied, and the response has been very encouraging. I would say that with respect to rating, it should be the best rating, and the type of response which IndiaMart team is also doing with us. I think it should be 9 or 10 out of 10, and only time can tell what will happen further. In old older days, we used to sell direct to customers. We used to sell through our canvases with a lot of high purchase. But now the methods have changed. But this is the need of the hour because if we don't do this, then we are left behind. Because today, a modern lady, um, any housewife, to imagine, she is preferring to go digital. So we have to reach to the customers. Otherwise, we would lose the trust. Basically, as I said, we're trying to reach to the customers through these e-platforms. IndiaMart is, I think, a good engine to connect customers to the suppliers. And we are happy. We are happy that our objective is primarily not, of course, it's sales, but then our objective is also to increase our awareness. We have been with them for 3, 4 months now, but then I'm happy at least awareness is increasing of single brand and the company through that. It's one of the cheapest mode of creating awareness. I would say we are happy with that. We are doing everything on digital platform. So this is one of the place here. I think it's worthwhile to continue and bring and go larger with that. We don't change often unless there is some specific reason for that. If India Marts their grows, we will also go with them, and then why should we change?
Traditionally, we were selling B2B, and we have moreover distributor network all over India, but we don't see who is the actual user for our product line. So to see that actual user and to show our competencies online, we are always thinking for digitalization. I mean, we evaluated different player in the same field that, I mean, what kind of services they are providing. And then we compared at every level that how India Mart is different in comparison to some of the people who are offering the same kind of service. But when we saw the kind of traffic India Mart is generating and the number of people who are eating actually on the India Mart side, so that was something which basically pushed us to go for India Mart. First year we took a basic package. So we were getting somewhere around 50 inquiries in a month. But when we went on for the next package, so the jump was phenomenal. So we started getting somewhere around 100, 112 inquiries every month. I mean, we felt very happy that yes, we are getting some kind of connectivity with the end customer. And this experience is really fantastic. We get all the time support and the technical assistance, and of course, inquiry generation has been increased by 5 times. So we really are thankful to India Mart for their services. I would say to the India Mart team, I mean, the job, whatever we have, I mean, we have experienced the services of India Mart. It is, I mean, up to the mark, and even what we're expecting, it is beyond that point, I would say. For us, India Mart, as we are working with them last 7 months, and we can see really increase in our inquiries. So I'll rate them something between 8.5 to 9. I'm really thankful for India Mart for providing their services. मेरा नाम ललित जैन है। मैं अपना पंजाब लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली आने के बाद बल्लभ साड़ी सेंटर से तुरंत स्टार्ट की है। हमारा ये फैमिली बिजनेस है और साड़ियों का होलसेल का काम किया है। मैंने ये बिजनेस 10 साल पहले स्टार्ट किया था। मेरी कंपनी के अंदर 15 सालों में काम करते हैं। मेरे लहंगा साड़ी, बुटीक साड़ी, ये मेरी कंपनी के अंदर होता है। मेन हमें परेशानियां यही आई है कि हमारे सामने कंपटीटर बहुत ज्यादा था। थोड़ा प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए दिक्कत आ रही थी कि मार्केट में प्रोडक्ट किस ढंग से बेचा जाए, क्योंकि सामने कंपटीटर बहुत ज्यादा था। उसके बाद धीरे धीरे सेटिंग ऐसी हो गई, हमारे प्रोडक्ट को लोगों ने बहुत लाइक किया, क्योंकि हमारे पास एकदम से बिल्कुल जेन्युइन हमारे सामने हमारे प्रोडक्ट के बिल्कुल 10-15 कंपटीटर हमारे सामने, उनको कंपटीटर को हम मुकाबला करते हैं उनसे, हमारे 1-2% रेट कम ही होते हैं उनसे। तो प्रोडक्ट की पूरी एकदम से क्वालिटी बढ़िया है, इसलिए हम उनका सामना करते हैं। पंजाब लुधियाना से कस्टमर आया मेरे पास, उसने सामने मेरे को कहा कि भाई साहब आपके रेट मार्केट से बहुत रीजनेबल है। सेम प्रोडक्ट उसने 3-4% महंगा लिया। कस्टमर मेरे पास परमानेंट लग गया। कस्टमर मार्केटिंग करने के लिए मैं पर्सनली शॉपकीपर को जाके मिला हूँ, इससे काफी मेरे को फायदा मिला है।
कुछ मीडिया मार्केट की तरफ से कुछ अपना वेबसाइट मैंने अपनी बनाई हुई है, उससे मेरे कस्टमर काफी जुड़े हैं। हमने अपने बिजनेस को इंटरनेट के थ्रू थोड़ा बढ़ाया है, प्रिंट मीडिया की तरफ से उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, पर्सनली जाके मिलते हैं, जैसे अपना कोई फेयर वगैरह लगता है उसमें हम पार्ट लेते हैं, हमें इससे बहुत बेनिफिट है। इंडिया मार्ट का मेरे को नेट से ही पता लगा था और मैंने फिर इनके ऑर्गेनाइजर को बुलाया दुकान पे अपनी, उसके बाद करीब 3 साल से मैं इनसे जुड़ा। इंडिया मार्ट से जुड़ने के बाद जो मेरी वेबसाइट का चौथे पांचवें नंबर पे नाम आता था, टॉप ऑफ दी नाम मेरा ही आता है सबसे पहले, और सबसे पहले कस्टमर पहले पेज पे मेरे को मिलता है। हमारे पास कस्टमर के डायरेक्ट फोन आते हैं, उनके टच में रहते हैं और 3-4 इंक्वायरी डेली आती है, अच्छी इंक्वायरी मिलती है। उसमें से जो एक दो मेरे मतलब की होती हैं उनको मैं सप्लाई करता हूँ। मैंने आप लोगों को लाइन से कुछ वीडियोस दिखाए. ओके, सो सम ऑफ द क्लाइंट्स व्हाई आई शोड ऑल दिस. कैन एवरीवन हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. I showed you Yes. okay, so Yes, sir. they are selling construction equipment. Okay, we are helping them also. Singer, very old company, selling sewing machines and embroidery machines and all. Okay, नाम सुनते ही याद है. They are also registered with us and getting leads from India Mart. Ingersoll brand, maybe 100-year-old company selling compressors. Worldwide, everyone knows them, but still they are registered with us. Okay, and then I have showed one company, Vallabh Sari Center. So what I want to show you is we are helping big businesses also and SMEs, MSMEs मैंने आप लोग को बताया. Okay, so we are helping MSMEs also. Okay, we cover each and every person who wants to do business. Okay, चाहे वो एक बड़ा business house हो या फिर एक छोटा business हो. Okay, our mission is very clear to make doing business easy from the very first day it is the same till now, and we are following it. Okay, so एक last video है आप लोगों के लिए. Okay, so one video from our Dinesh Agarwal sir. Okay, so he was representing India Mart in one of the seminars. Very inspirational, very motivational. Okay, so इंडिया मार्ट का वो जर्नी बताते हैं अपना. ओके, सो एक बार ये देखिए. आफ्टर दैट आई विल बी शेयरिंग द अटेंडेंस शीट विद यू एंड देन विल बी स्टॉपिंग द सेशन. देखिए लास्ट वीडियो प्लीज देखिए. क्या हो गया इसको फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा? विजिबल टू एवरीवन, आवाज आ रही है ना? Yes. Yes, sir. लोगों के अखाड़े में आप म्यूट एवरीवन, प्लीज म्यूट. नमकीन लेके कूद पड़े 10 बाई 10 के कमरे से और इतनी बड़ी कंपनी बनाई. ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का सोर्स है. और आप जैसे तमाम मैन्युफैक्चरर्स मिलकर हमारे मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करेंगे शायद.
हमारा इंडिया मार्ट का जो बिजनेस है वो भी ज्यादातर आपके जैसे मैन्युफैक्चरर्स और मोस्टली स्मॉल मैन्युफैक्चरर से मिलके बना हुआ है। थोड़ा सा मैं पहले जानकारी दे दूं इंडिया मार्ट के बारे में, आज का साइज एंड स्केल, और उसके बाद मैं अपनी भी 10 बाई 10 के कमरे वाली कहानी सुनाऊंगा। I guess everybody is okay in Hindi or English? Huh? Hindi is fine? Okay. Now, because I come from a place called Nanpara district, Bahraich, which is about 17 kilometers from Nepal border in UP, and I only studied in Hindi medium school all up to 12th in a सरकारी स्कूल, तो इंग्लिश थोड़ी तंग है यार। गया मैं भी अमेरिका, लेकिन trying to join. आज की तारीख में करीब 63 मिलियन ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, एमएसएमईज इंडिया में हैं, और जो करीब 30% के आसपास इंडिया के जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिसमें करीब 18% मैन्युफैक्चरिंग से आता है, बाकी सर्विसेज से आता है। लेकिन केवल 17-18% एसएमई ही अभी इंटरनेट या ऑनलाइन किसी सुविधा का इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स हार्डली 10 मिलियन एसएमईज ऐसे हैं, 1 करोड़ एसएमईज ऐसे हैं, और वो नंबर वैसे भी पता लगता है क्योंकि अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड एसएमईज की बात करें तो करीब 1.25 करोड़ लोग ही जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। तो जहां इंडिया में सारे पकौड़े वाले, सारे चाय वाले मिला लें तो 63 मिलियन एसएमईज हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मल इकोनॉमी में देखें तो केवल 1.25 करोड़ एसएमई ही जीएसटी में रजिस्टर्ड है। इंटरनेट ने क्या किया है? इंटरनेट के आने की वजह से एक तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, जहां लोगों के लिए एंटरटेनमेंट आया, ई कॉमर्स आया, एजुकेशन आया, वैसे ही बिजनेसेस के लिए एक एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी और एक्सेस टू फाइनेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध हुई। एंड दिस हैज बीन ओनली मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल कंप्यूटर दैट वी हैव इन आवर हैंड। फोन तो ये थोड़ा सा छोटा सा काम फोन का करता है, लेकिन ज्यादातर ये पूरा कंप्यूटर अपने आप में एक बहुत ही कमाल की चीज है। एंड इस डिजिटल इकोनॉमी की वजह से इतना डेवलपमेंट हुआ है कि पहले जो रूरल का रूरल में डेवलपमेंट हो पाता था, अर्बन बायर अर्बन सामान ही खरीद पाता था, अब आप चाहे टियर 4 सिटीज में है, चाहे गांव में है, वहां बैठे बैठाए सामान आप मंगा सकते हैं, कहीं से भी कहीं, आप कहीं से भी कहीं सामान बेच सकते हैं। ये केवल पॉसिबल हो पाया है इंटरनेट की वजह से। तब तक एक मैं और स्टैटिस्टिक्स बताता हूं। इंडिया मार्ट पे अकेले आज 83 मिलियन रजिस्टर्ड बायर्स हैं, जैसे 8.5 करोड़ के आसपास रजिस्टर्ड बायर्स हो चुके हैं, और करीब 55 लाख सप्लायर्स इंडिया मार्ट पर हैं, जो करीब 6 करोड़ प्रोडक्ट और सर्विसेज अपनी डिस्प्ले कर रहे हैं। और एवरी डे हम करीब सवा करोड़ के आसपास मैच मेकिंग करते हैं। 1.25 करोड़ कह रहा हूँ, 12 से 15 लाख के आसपास बायर सप्लायर की मैच मेकिंग करते हैं। और ये अगर आप थोड़ा नंबर्स को ध्यान से देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन केवल 1200 मिलियन की है, जिसमें से 82 मिलियन, तो इसका मतलब 1 in every 15th Indian is already using India Mart in some or the other manner for buying or selling something, and that's the kind of penetration we have. Last year alone we got about 200 million visitors on our platform, which is almost like 50% of Indian internet users coming to India Mart once every year. Another important thing is people think that in B2B or in advertising business there is no repeat buyers. We have 55% buyers who are coming repeatedly back to India Mart every 90 days. Almost 39% of our suppliers are also buying through India Mart. And today we have offices across 72 offices across the cities all over India. My story of 10 by 10 room, I also started from my house only. आशीर्वाद एनक्लेव में पटपड़गंज में एक घर है, और वहीं के एक कमरे से स्टार्ट कर दिया।
when I came in 1995 from US, I didn't come to create a large IPO-led business or something like that. I only came here to do a small business of website making, and how that small business in 98, 99 suddenly, started taking wings कि अब तो बड़ा बिजनेस बनाना है। तो आप सोचिए कि 96 में जब शुरुआत की तो पहले साल का टर्नओवर कुछ 6 लाख रुपए और अगले साल का टर्नओवर कुछ 24 लाख रुपए, लेकिन उसके तीसरे साल ही 98, 99 में यहाँ पे वेंचर कैपिटल और रिडिफ का आईपीओ और सिफी ने 500 करोड़ रुपए में इंडिया वर्ल्ड को खरीदा, और उतने दिन में एक साल में हम इतने इंटेलिजेंट हो गए कि हमने प्रोप्राइटरशिप फर्म से सीधा लिमिटेड कंपनी बना दी। हमने कहा प्राइवेट लिमिटेड छोड़ो, अभी 4-5 साल में तो आईपीओ करना है, तो सीधा ही लिमिटेड कंपनी बना दी 1999 में। और इतनी जल्दी ये भी सीख गए कि ईसॉप भी देना होता है, और ईसॉप प्लान भी बना दिया और बहुत सारे एम्प्लॉइज को ईसॉप भी दे दिया, लेकिन फॉर्चुनेटली वो बहुत काम आया। आज मेरे पास करीब 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं जो मोर देन 10 years विद अस हैं, so that has worked very well। 99 में कंपनी बनाने के बाद बहुत तेजी से ग्रो किए हम। .com का बस्ट भी हो गया। .com के बस्ट होने के बाद भी इंडिया मार्ट एक सर्वाइवर के रूप में निकल के आया, और पहली बार किसी मैगजीन के कवर पे हु इज दिस मैन हु इज मेकिंग प्रॉफिट्स करके एक कवर स्टोरी आई बिजनेस वर्ल्ड की 2001 में, एंड वी वर फ्लाइंग इन द सेवेंथ स्काई। हमने लोन लेकर के ऑफिस की जमीन वगैरह ले ली, सब कर लिया। एज दो लक वुड हैव इट, जिस दिन ऑफिस का भूमि पूजन किया और उसके अगले दिन अमेरिका में टेररिस्ट अटैक हो गया सितंबर 11 का 2001 में, और हमारा अगले दिन रेवेन्यू आधा हो गया, क्योंकि हमारा ज्यादातर रेवेन्यू एक्सपोर्ट्स की वजह से आता था और एक्सपोर्टर्स का काफी नुकसान हुआ उसकी वजह से। और उसके बाद अगले 1-2 साल तक काफी सन्नाटा रहा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अभी एमबीए भी ज्वाइन किया था उसी समय में, पार्ट टाइम एमबीए शाम को, कि मैं एमबीए भी कर लूंगा, तो वो एमबीए भी नहीं हो सका। लेकिन उसके अगले 9 महीने में शायद मेरे को एमबीए से जब बहुत ज्यादा सीखने को मिला अपने बिजनेस में ही, कैसे कॉस्ट कट करी जाए, कैसे एम्प्लॉइज को रोका जाए, कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाए, कैसे नए कस्टमर बढ़ाए जाए, कैसे नया रेवेन्यू बढ़ाया जाए। तो एक ये पूरा 1996 से 2001-2002 तक का टाइम था जो कैसे एक स्मॉल बिजनेस ड्रीम को अचानक से एक लिमिटेड कंपनी विद आईपीओ एंड ईसॉप के ड्रीम में कन्वर्ट कर दिया उसने। खैर 2002 से चीजें सुधरने लग गई और 2008 तक हम काफी अच्छे उसमें आ गए। हम करीब 50 करोड़ के रेवेन्यू पे भी पहुंच गए, अच्छा खासा 10 करोड़ का प्रॉफिट भी बनाने लग गए। और उस समय जब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, तब अचानक वर्ल्ड की क्राइसिस हो गई। 2008 में द एंटायर वर्ल्ड वेंट थ्रू कंप्लीट चेंज। एक्सपोर्ट्स हमारे यहाँ के सब खत्म होने लग गए। रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट 38 रुपए से लेके 54 रुपए तक फ्लक्चुएट कर रहा था, और अचानक से पूरा ड्रीम जो आईपीओ के थे, जबकि उस पूरे टाइम में सिर्फ एक कंपनी आईपीओ कर पाई थी इंटरनेट का, वो था 2006 में Naukri.com का। और Naukri.com हैज बीन अ ग्रेट कंपनी जिसको हम लोग फॉलो करते आए हैं इंटरनेट के नाम पे। एंड उस समय वो कंपनी कुछ 800 करोड़ के मार्केट कैप से आईपीओ किया था, आज कुछ 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है Naukri.com का। तो 15 साल लगे उनको वहां से यहाँ तक पहुंचने में। तो 2008 में हमारे सारे ड्रीम दोबारा से बंद हो गए कि अब क्या करना है, क्योंकि बिजनेस तो एक चल सकता है लेकिन ये बिजनेस अब आईपीओ तो कभी नहीं जाएगा। और एक बार आपके दिमाग में आईपीओ का कीड़ा बैठ गया 1999 में, फिर वो उतरता नहीं है। फिर आपको वो आईपीओ करके ही मानना है, चाहे जैसे भी हो सके। तो वो एक जो कीड़ा है, क्योंकि तो फिर से पूरा बिजनेस रीहैश किया, रीडू किया। और 2008 में पहली बारी हमने वेंचर कैपिटल पैसा लिया इंटेल कैपिटल से $50 मिलियन के आसपास, और अगेन वी स्टार्टेड टू फ्लाई, अगेन वी स्टार्टेड। एंड मुझे याद है 2010 का टाइम था, हमने कहा बस अब 400 कस्टमर से 4000 कस्टमर इसी साल कर देंगे। और उस साल में हमने 52 हफ्ते में 52 ऑफिस खोले, एवरी वीक 1 ऑफिस। मुझे अच्छी तरह याद है 52 हफ्ते में 52 ऑफिस। एंड एज द लक वुड हैव इट, वो 400 कस्टमर महीने से जो हम शुरू किए थे, मार्च 2011 में हमने 4000 कस्टमर कर डाले, है ना। लेकिन
जैसे कहते हैं ना कि दुख सदा रहता नहीं तो सुख का भी अंत है। थोड़ा उल्टा हो गया लेकिन है सही। By the end of 2011, it was like ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। मतलब losses all around, employees leaving us, customers leaving us. I was afraid to come to gathering like this because I don't know कौन हमारा customer निकल पड़ेगा। And we had to rehash everything. I think उस समय में हम एक नई टर्म शीट साइन करने वाले थे कुछ $100 million के उसके ऊपर, और वो इन्वेस्टर भी वॉकआउट कर गया। एंड दैट इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू अस इन द टाइम, बिकॉज उसकी वजह से हमने जो अपना पूरा प्रोडक्ट रिहैश किया, पूरा मार्केट रिहैश किया, पूरी कंपनी को वापस से चलना सिखाया। एंड ओवर द नेक्स्ट 2-3 years अगेन वी फाउंड अवर मोजो, एंड टुडे as people will say, rest is history. Today we are listed. We listed on the 4th of July. 4th of July, about 10 days ago. Our stock is doing well. Probably one of the only few stocks which are doing well after the IPOs. We continue to do well, and we need a lot of help and support from all of you to continue doing well. I don't know what kind of gyan I can give you. I just have some 4-5 lines. Now, as people say, there are no shortcuts. It takes time, and not it takes time, it just takes lifetime. So doing an IPO or thinking about it is not just it takes time, it just takes entire lifetime. And things won't happen the way you initially thought. They would evolve and you will adjust. They would evolve and you would adjust. Employees are your partners, because अगर वो नहीं होंगे तो आपको कुछ नहीं हो सकता. And last but not the least, this is not an exit. People call IPO an exit. Exit होगा, ये investors के लिए होगा, but founders के लिए ये exit नहीं है, ये entry है, और काफी gruesome entry है, because उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर का डिसिप्लिन चालू होगा. आई थिंक हम बात करेंगे पिछले 2 साल में कैसा रहा अमित भाई के साथ. So it's not an exit, so it's a lifetime game, and it's not a shortcut. So it's not for entrepreneurs looking for 3 to 5 year exit. It's not for, it's writing your entire life towards a particular business or a particular nation or a particular cause. Thank you. Did everyone see this video? Was this motivating, motivational? Yes, sir. So this is the Motivational. Mart had its own shares of ups and downs, but yes, today, as of now, we are the number 1 company. Okay, so any questions, any doubts, anyone wants to ask anything about India Mart or थोड़ा प्रोग्राम के बारे में किसी को कुछ जानना है, so they can ask. No doubts, no questions, all clear. Yes, sir. Okay, so this is your attendance sheet. Okay, आप लोगों की attendance I am also noting through an app, but still you can fill this form. I'll be sharing this form in WhatsApp and chat. I hope everyone has joined the WhatsApp group. थोड़ा confusion हो गया. So can everyone see this form? Yes. So this is attendance form. I'll be sharing this. Okay, so every day one form, both the sessions. Okay, so same link you have to come back again after the second session. Okay, so मैं यहाँ पे morning, afternoon, and in the drop down you have to select your name. Okay, drop down में आप सारे लोगों के name है. All of your names has been added here. अगर किसी का नहीं है, so please ping. कहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है? प्लीज म्यूट कर लो. So all of your names has been added. कुछ HR कई बार लेट नाम देते हैं, so वो भी मैं ऐड कर दूंगा. Okay, if anyone is not having the name, please ping me.
So this is your name, okay, and this is the agent ID, okay. जो मैं आप लोग को मॉर्निंग में बोल रहा था एजेंट आईडी, इट इज इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए, यही एम्प्लॉय आईडी होगा, एंड दिस इज द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी विच यू आर गिवन टू एचआर, ओके. आपका नाम है, एजेंट आईडी है और आपका ईमेल आईडी है. सो यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट दिस, ओके. एंड अभी मॉर्निंग सेशन है, सो अभी हम मॉर्निंग करके अपना नाम सेलेक्ट करिए एंड सबमिट इट. आफ्टरनून में फिर से अपन इसी लिंक में आके आफ्टरनून करके फिर से सबमिट कर देंगे, ओके. सो दिस इज द अटेंडेंस शीट. हैज एवरीवन जॉइन्ड द व्हाट्सएप ग्रुप 390 389 नहीं, जो 389 में है प्लीज एग्जिट कर दीजिए. Yes, sir. Done for the day. You can mark your attendance. Next session will be at 3 p.m. Please connect at 3 p.m. Okay. If you do not have any doubts, please mark your attendance ASAP. Sharing in WhatsApp also. So though few people have joined late, okay, I'll be sharing the PPT and the recording. Okay, आप लोगों से मैं share कर दूँगा. Please go through it. Yes, if you do not have any questions, then you can exit. Thank you very much. No need to share screenshots and anything. Screenshot share मत करिए. Session is done from my side. अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन एग्जिट. राहुल आपका मुझे पता नहीं है. राहुल मैं आपका नाम ऐड करके ना थोड़ा देर दीजिए, मुझे एचआर का फोन आया था, थोड़ी देर में ऐड कर दूंगा. एक बार आप हाफ एन आवर में चेक कर लीजिएगा, ओके. मेरे पास आपका डिटेल्स नहीं आया, ओके. Okay, thank you. Yeah. Okay, thank you, sir.